కోస్ట్ ఏంటండి? కో-హోస్ట్‌గా ఇస్తా. మంత్రపాఠः. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మనం సాంఖ్యదర్శనం క్లాస్లో ఆచార్య సత్యజిత్ జీ గారు వస్తున్నారు. వారు మాకు దర్శనాలు బోధించారు. వారు ప్రస్తుతానికి గుజరాత్ ప్రాంతంలో వానప్రస్థ సాధక ఆశ్రమం అని చెప్పి ఒక పెద్ద గురుకులం ఉంది. అంటే అక్కడ 4 ఆశ్రమం వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే బ్రహ్మచారులు ఉంటారు, గృహస్థులు కూడా ఉంటారు, వానప్రస్థులు, సన్యాసులు నలుగురు ఉంటారండి. ఇప్పుడు అక్కడ ఆశ్రమం నడుస్తుంది. ప్రస్తుతానికి వానప్రస్థులు ఎక్కువగా, బ్రహ్మచారులు అక్కడ విద్యార్థ్యం చేస్తూ ఉంటారు, సన్యాసులు కూడా ఉంటారు అక్కడ ఒక పెద్ద సంస్థ. అక్కడ చికిత్సాలు నడుస్తుంది. నిరంతరంగా ఏదో ఒక శిబిరాలు, ఉపన్యాసాలు నడుస్తూ ఉంటాయి. అంటే బాల బాలికలకు శిబిరాలు కానీ, సంస్కృత శిక్షణ శిబిరం కానీ, అలాగే ఇంకా నిత్యం ఏదో సత్సంగం నడుస్తూ ఉంటున్నాడు. ఏదో కార్యక్రమాలు 1 వీక్ వరకు కార్యక్రమాలు నడుస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అందరికి ఉపయోగపడే విధంగా యోగాభ్యాసము, ధ్యానం సంబంధించి, ఇంకా దర్శనాలు, వ్యాకరణం, ఇవన్నీ కూడా అన్ని ఒకే చోట ఉపలబ్ధం అవుతాయంట. చాలా మంది ఉంటారు. దాదాపుగా ఒక 100 మంది దాకా ఆశ్రమంలో ఉండొచ్చు మొత్తం కలిపి. అంటే ఆశ్రమ వాసులు, బ్రహ్మచారులు అందరికి కలిపి చాలా విశాలంగా ఉంటుంది. అక్కడ ఆచార్య గారు ముఖ్య ఆచార్యులుగా ఉన్నారు. చాలా మంది విద్యార్థ్యం చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ మొత్తం నిశుల్కంగా వ్యవస్థ నడుస్తుందండి. నిశుల్కంగా అంత ఆచార్య వారు చూస్తూ ఉంటారు అక్కడ. ఇక్కడ ఇదే కాకుండా అజ్మీర్ అంటే రాజస్థాన్ లో కూడా ఒక గురుకులం ఉంది, రిషి విద్య అని చెప్పి. అక్కడ వారు కూడా మంత్రి పదవిలో ఉన్నారన్నమాట. అక్కడ కూడా ఆ సంస్థ కూడా వీరే చూస్తూ ఉంటారు అనమాట ముఖ్యంగా. అక్కడ కూడా దాదాపుగా వానప్రస్థులు, బ్రహ్మచారులు విద్యా అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు రాజస్థాన్ లో కూడా. ఈ రకంగా గురుకులాలను మెయింటైన్ చేస్తున్న వారు. ప్రసిద్ధమైన గురుకుల కూడా ఉత్తర భారతదేశంలో అక్కడ గుజరాత్ లో కావచ్చు, రాజస్థాన్ లో కావచ్చు. వారు అక్కడ ఉంటూ, ఆచార్య పదవిలో ఉంటూ వారిని సంచాలనం చేస్తున్నారు. ఈరోజు మన విన్నపాన్ని మన్నించి వారు ఈరోజు మన కక్షకు ఆమంత్రించాము రమ్మని చెప్పి. మీరు ఎవరికి ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా మీరు హిందీ వచ్చిన వాళ్ళు హిందీలో అడగవచ్చు, ఏదైనా కానీ ఎటువంటి విషయమైనా కూడా. కాబట్టి మీరు ప్రయత్నం చేయండి. మీరు ఒకవేళ అర్థం కాని పక్షంలో ఎలా అడగాలని మీరు తెలుగులో నాకు చెప్పినా కూడా నేను వారికి తెలియజేస్తాను. అస్తు. ఈరోజు వారి యొక్క ఉపదేశాన్ని మనం విందామండి. మీరు నేను మంత్రపాఠः. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः. అందరికీ నమస్కారం అండి.
ఈ రోజు మనం సాంఖ్య దర్శనం క్లాస్ లో ఆచార్య వారిని ఆమంత్రించాము. వారు మనకు సాంఖ్య దర్శన విషయంలో అంటే ఆత్మ పరమాత్మ విషయం కావచ్చు, ముక్తి విషయం కావచ్చు, ఏదైనా విషయాన్ని తీసుకొని మనం అడిగిన ప్రశ్నలను బట్టి వారు సమాధానం చెప్తారు. ఇంకా మామూలు కూడా వారు మనకు ఈ సాంఖ్య దర్శనం యొక్క ఉపయోగిత గురించి చెప్తారు. కాబట్టి మీలో ఇంకెవరికైనా సందేహాలు ఉన్న వాళ్ళు వారిని అడగవచ్చు. సో ఆ రకంగా ప్రయత్నం చేయండి, మీకు అనుకూలంగా ఉండేవాళ్ళు రాగానే. అస్తు. हाँ महोदय, सुनाई दे रहा है महोदय। अस्तु, आचार्य जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। जी आचार्य जी, आपकी आवाज आ रही है आचार्य जी, आप बोल सकते हैं आचार्य जी। न श्रूयते महोदय। जी విజిలేష్ గారిని మ్యూట్ లో పెట్టుకోమనండి. ఎప్పుడు మాట్లాడతారు వినిపిస్తుంది మాకు అందరికి. మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి అందరూ. విజయలక్ష్మి గారిని మ్యూట్ లో పెట్టుకోమనండి, రోజు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. जी మీరు ఇంకా ఆచార్య కనెక్ట్ అయ్యారని आचार्य कनेक्ट हो गए आचार्य जी? आचार्य ध्वनि आ रही है? हाँ अभी आ रही है आचार्य जी। अच्छा ठीक है। नमस्ते महोदय। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। నమస్తే नमस्ते महोदय। महोदय। నమస్తే ఆచార్య మహోదయ. जी आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी। तो आज यहाँ कक्षा में आचार्य जी इन लोगों की जिज्ञासा है, आप इस सांख्य दर्शन के विषय में कुछ मुक्ति के विषय में, मुख्य रूप से आत्मा परमात्मा के विषय में, उस विषय को लेकर के पहले कुछ प्रस्तावना करेंगे। इस मुख्य रूप से इस सांख्य दर्शन का प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन में किस रूप में लेना चाहिए, तो थोड़ा सा भूमिका के रूप बताएंगे। तो लोगों की शंकाएं हैं तो वो लोग आपसे पूछेंगे आचार्य जी, तो उसके प्रश्नों के हिसाब से समाधान कर सकते हैं आचार्य जी। तो लेकिन ये विषय तो नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन ये विषय तो आप बता चुके होंगे ना, सांख्य की भूमिका, सांख्य में मुक्ति का विषय, सांख्य का प्रयोजन, ये सब तो चीजें आप बता ही चुके होंगे। उन लोगों को, किसी को जिनको पूछना है वो सीधे पूछ सकते हैं। क्या पूछना है फिर वो मैं बता देता हूँ जो मेरे को आता है। जी आचार्य जी। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी मैं मुझे एक संदेह है गुरुजी, मैं पूछना चाहती हूँ गुरुजी, पूछ सकती हूँ क्या गुरुजी? हाँ पूछिए। हाँ गुरुजी नमस्ते गुरुजी, मुझे एक संदेह है ना, या यज्ञ याग आदि कर्मों के सुख में तथा मुक्ति के सुख में कौन सा अंतर है गुरुजी, और मुक्ति कब तक चलती है गुरुजी? हाँ हाँ, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा कोई जी 1 मिनट रुकेंगे, अभी आ रहे हैं। ऐसा सीधे पूछ सकते हैं आचार्य जी, ये कह रहे हैं कि हम फिर मैं आपको మీరు ప్రశ్న అడగవచ్చని చెప్తున్నారు కాబట్టి ప్రశ్న అడగండి, దాన్ని బట్టి ఆచార్య వారు మనం ముందు విషయం కూడా, మీరు అనుకున్న విషయం కూడా మొత్తం ప్రస్తావన వస్తుంది. आचार्य नमस्ते जी। రాజ్యలక్ష్మి గారు 1 मिनट,
వారు నాగమణి గారు ప్రశ్న అడిగారు కదా, వారిది అయిపోయిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ అడగండి. ओके हाँ, लोकेश जी जिन्होंने पहले प्रश्न पूछा था उनके उस विषय में पहले बोलूं? हाँ, उस पर बोल दिया था जी. हाँ, उस तो जी. उनका प्रश्न ये था कि कर्म से जो सुख आता है और मुक्ति का सुख है उसमें क्या अंतर होता है, यही प्रश्न है ना उनका? जी जी. हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। जी, तो देखिए, एक तो कर्म का सुख जो हम शरीर में रहते हुए सुख भोगते हैं, संसार के साधनों से, इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जो हम सुख लेते हैं वो ज्ञानेंद्रियों से के माध्यम से, मन के माध्यम से हमारे को मिलते हैं। तो ये जो सुख होते हैं, एक तो इनका सुख बहुत कम होता है। जैसे संसार के विभिन्न वस्तुओं के सुख अलग अलग होते हैं, छोटे बड़े, तो कोई तो मुक्ति का सुख इससे बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो एक तो बड़ा अंतर ये है। दूसरा, सांसारिक सुख बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं और मुक्ति का सुख बहुत लंबे काल तक लगातार होता है। सांसारिक सुख है वो थोड़ी देर होते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर थोड़े होते हैं। मान लो भोजन का हमने सुख लिया, तो भोजन खाया हमने, फिर पेट भर गया, फिर सुखाना बंद हो गया, फिर अगली बार भूख लगेगी, फिर हमारे को सुख होगा। तो ऐसे ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए होते हैं और फिर चले जाते हैं। मुक्ति का सुख मुक्ति के काल तक लगातार बना रहता है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष जो है उतने समय तक लगातार बना रहता है। और यहाँ जो हम संसार का सुख लेते हैं, प्राकृतिक सुख जो भी हम लेते हैं, उसमें वो हमारे को सदा नहीं मिलता, वो वहां सदा मिलता है। इन सुखों के साथ में दुख मिला हुआ होता है। सांसारिक सुखों में हम दुख उसके साथ में कई तरह के मिले हुए रहते हैं। अधिक ले लो तो रोग आदि हो जाते हैं, तो कोई छीन भी सकता है। तो मुक्ति के सुख में कोई दुख नहीं होता है, वो दुख रहित है, शुद्ध सुख है। संसार का सुख दुख से युक्त है। संसार के सुखों को कोई हमसे छीन सकता है, वस्तुओं को छीन सकता है, लेकिन मुक्ति के सुख को कोई छीन नहीं सकता हमारे से। हम निर्भयता से उसको ले सकते हैं। संसार के सुख को हम हर जगह हर समय नहीं ले पाते, क्योंकि वो साधन सब जगह पर नहीं होते हैं। जहाँ साधन होंगे वहीं पर ही ले पाते हैं। लेकिन मुक्ति का सुख ऐसा है कि क्योंकि परमात्मा सब जगह व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, तो परमात्मा का आनंद और ज्ञान भी सब जगह विद्यमान है। तो वो हम कहीं भी और कभी भी किसी भी समय मुक्ति के काल में हर जगह और हर समय हम उसको ले सकते हैं। ये भी उसके अंदर भिन्नता है। सांसारिक सुख जब हम लेते हैं उससे अविद्या भी उत्पन्न होती है, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। और संसार का सुख जो है वो अविद्या से युक्त ही होता है। और मुक्ति का सुख है उससे कोई अविद्या उत्पन्न नहीं होती, अज्ञान उत्पन्न नहीं होता, और वो अविद्या से युक्त नहीं रहता, वो शुद्ध ज्ञान की स्थिति में रहता है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें अंतर हैं। और संसार के सुखों को हम ज्यादा करते हैं तो हमारे को रोग आ सकते हैं। मुक्ति के सुख में कोई रोग नहीं आता है, उसको लगातार हम भोगते हैं। शरीर के इन सुखों को लेते हैं हम सांसारिक, तो शरीर में बंध करके ले सकते हैं, बंधन में ही हम ले पाते हैं, और वहां पर हमारे बंधन रहित हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बहुत सारा अंतर सांसारिक सुख में, यानी कर्मजन्य इंद्रियजन्य सुख में, और ईश्वर में मुक्ति के सुख में अंतर होता है। आपका प्रश्न का उत्तर हो गया? हाँ हाँ गुरुजी, बहुत समझ गई गुरुजी। ठीक है, ठीक है। आगे हमारे अगला प्रश्न। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। जी, राजलक्ष्मी గారు మీరు అడగండి. मैं प्रश्न एक नमस्ते आचार्य जी। जी, ये जीवात्मा का डेफिनेशन निर्वचन क्या है, क्या दे सकते हैं, और इसका रंग रूप कुछ होता है, ये जानना चाहते हैं। हाँ, तो आत्मा तो जो गतिशील है, गमनशील है, चेतन है, उसको आत्मा कहते हैं। तो जी जो चेतन है ज्ञान से गमन करता है, यानी गमन यानी तो प्राप्त है। तो आत्मा जो होती है वो तो एकदेशी होती है, तो उस दृष्टि से वो इधर उधर आती है, सब शरीर के साथ या बिना शरीर के भी, तो वो उसमें गमनशीलता है, इसलिए वो आत्मा कहलाती है, चेतन है। और परमात्मा भी आत्मा है, वो सब जगह पहले से व्याप्त है, प्राप्त है।
तो उसको यूं गति नहीं करता है, लेकिन सब जगह प्राप्त है, इसलिए वो भी सतत गमन कर रहा है, सतत उसकी प्राप्ति हो रही है। इस रूप में तो इसका ये पहला अर्थ हुआ, चेतन होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपका है कि इसमें रंग रूप होता है या नहीं होता है। तो आत्मा में रंग रूप नहीं होता है। तो प्रकृति से बने हुए पदार्थों में ही रंग रूप होते हैं। आत्मा में रंग और रूप एक ही बात हो गई। ये रूप के अंदर ही नहीं है। आत्मा में गंध भी नहीं है, आत्मा में कोई रस भी नहीं है, न स्वाद है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय 5 ज्ञानेंद्रियों के होते हैं। ये पांचों आत्मा में परमात्मा में नहीं होते। इसलिए आत्मा और परमात्मा को हम इन इंद्रियों से नहीं जान सकते, नहीं जान पाते। ये इसलिए आपका जी महोदय। जी जी आगे जी प्रभाकर गाరు ओम नमस्ते महोदय। नमस्ते। एक प्रश्न मैं पूछूं? हाँ। मैं प्रणव मणि प्रभाकर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी। संसार में सभी चीज दिखते हैं आंखों से, लेकिन आत्मा और परमात्मा नहीं दिखते, क्यों? उसका कारण बताइए। ओम। देखिए, आंखों से हम किन चीज को देख पाते हैं ये पहले समझते हैं। तो आंखों से हम उन चीजों को देख पाते हैं जिनमें रूप गुण होना हो, और साथ में वो अनेक द्रव्यों से मिल करके भी बने हुए हों, उनको हम देख पाते हैं। 2 चीजें हैं, एक तो रूप गुण होना चाहिए, और रूप गुण वाली चीजें यानी सूक्ष्म परमाणु होते हैं, वो मिलने के बाद में जब त्रसरेणु या कुछ स्थूल होते हैं, तो अनेक द्रव्यों, अनेक उनका संगठन, अनेक मिल करके जुड़ करके जब बड़े बनते हैं, तब हम उनको देख पाते हैं। तो जो रूप गुण वाली वस्तुएं, वो भी यदि सूक्ष्म होती हैं, बहुत छोटी अगर हो, तो वो भी हम आंख से नहीं देख सकते, बहुत दूर होता है तो भी नहीं देख सकते इत्यादि, वो कुछ बाधाएं हैं। लेकिन मूलतः जिसमें रूप गुण हो और अनेक द्रव्यों से मिलकर के जो बना हो, उसको हम देख सकते हैं। ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार आपको सिद्धांत बता रहा हूं। तो आत्मा में और परमात्मा में न तो रूप गुण है, और न इनके मिलने से कोई चीज बनती है। स्थूल रूप है कि बहुत सारी आत्माएं मिल करके स्थूल हो जाएं और फिर हमारे को रूप गुण हो, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो जिसमें रूप गुण है ही नहीं, इसलिए ये हमारे को दिखाई नहीं देता। कोई भी वस्तु जिसमें जो गुण होता है उसी गुण से वो जानी जाती है, और जिसमें जो गुण नहीं होता है वो उस गुण से जान ही नहीं सकते उसको हम, क्योंकि वो गुण ही नहीं होता है उसमें। बस यही कारण है। तो आत्मा को जानने की रास्ता क्या है? कि आत्मा को जानने का रास्ता तो आपने योग दर्शन, जैसे आप अभी सांख्य को पढ़ रहे हैं, तो विवेक प्राप्त होने पर हमें आत्मा को जानने को मिलता है, और विवेक प्राप्त करते हैं और अंदर जाते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। इंद्रियों से बाहर देखेंगे तो बाहर तो कोई आत्मा दिखाई नहीं देगी हमारे को। वो अंतर्मुखी होते हैं, जिसमें हम ध्यान की प्रक्रिया में जाते हैं, पहले एकाग्र होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, और उसके बाद में जब संप्रज्ञात समाधि लगती है, जो योग दर्शन में बताई गई है, तो समाधि में मन एकाग्र पूरा होता है और आत्मा के ऊपर जब केंद्रित होते हैं, तब वहां आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो उससे आत्मा का साक्षात्कार होता है, ज्ञान होता है। लेकिन उस ज्ञान में भी रूप गुण नहीं आएगा, क्योंकि रूप गुण उसमें होता ही नहीं है। आत्मा में जो गुण है उनका हमें पता लगेगा। तो ये प्रक्रिया है, और उसमें एकाग्र होने के लिए बाकी सारी चीजें हैं। यम नियम का पालन है, आसन प्राणायाम भी जुड़ जाता है, प्रत्याहार जुड़ जाता है, विवेक वैराग्य, ये सब चीजें वहां पर जुड़ जाती हैं। और ये हमारी अच्छी होने पर फिर समाधि लगती है, और वहां ईश्वर का या आत्मा का साक्षात्कार हो गया आपका उत्तर? आखिरी प्रश्न जी, जो एक महर्षि दयानंद ने जो गायत्री मंत्र सबके लिए, सब मानव कल्याण के लिए हमें बता दिया,
पर कि हाँ। थोड़े लोग बोलते हैं महिलाएं माताएं गायत्री मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसका कारण क्या है? ओम। तो महर्षि ने सबके लिए कहा, और वेद के सभी मंत्र सबके लिए हैं, मानव मात्र के लिए हैं। तो इस क्योंकि हम सब आत्माएं परमात्मा की संतानें हैं, हम सब उसके लिए समान हैं, इसलिए वेद का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, मंत्र सबके लिए है। तो ये तो महर्षि दयानंद ने जो कहा। और दूसरे लोग जो हैं वो, चूंकि वो लोग सबको ये चीजें देना नहीं चाहते, स्वयं का अधिकार रखना चाहते हैं, दूसरों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, स्वयं ही रखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं मूलतः। लेकिन बोलते ये है कि इससे महिलाओं को हानि हो जाएगी, महिलाओं को गर्भ की हानि हो जाएगी, महिलाओं की बुद्धि के लिए ठीक नहीं है। तो ये केवल उनको कम शिक्षित रखने के लिए और अलग थलग रखने के लिए, अपने नियंत्रण में रखने के लिए ऐसी बातें हैं, जो कि अन्याय है। अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पक्षपात है ये। तो सभी के लिए, और गायत्री मंत्र के पढ़ने से महिलाओं को कोई हानि नहीं होती है, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे बिना गर्भवती हो, बच्चियां हो, वृद्धा हो, कोई भी हो। तो जैसे पुरुषों को कोई हानि नहीं होती है, ऐसे उनको भी कोई हानि नहीं होती है। तो सब जने प्रयोग कर सकते हैं, जो मना करते हैं वो गलत मना करते हैं। और आचार्य जी और एक प्रश्न, ये अभी जी, गायत्री प्रभाकर मंत्र गाరు। रेगुलर करने के लिए अब वेद का आज्ञा आज्ञा है, मतलब सब लोगों को पढ़ना बोल के है, पर कि वेद को ऐसे तो संदर्भ आते हैं माताएं महीने में दूर रहते हैं 5 दिन, तब भी पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि गायत्री मंत्र के पढ़ने से मन में शांति रहेगी, तो वो उस काल में जो उनको कभी किसी किसी को कष्ट होता है वो कम होगा, शांत रहेंगे और उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो गायत्री मंत्र से तो लाभ ही होगा, हानि कुछ नहीं होगी। और वो महिलाएं कोई अपवित्र नहीं होती हैं कि गायत्री मंत्र पवित्र है तो गायत्री मंत्र खराब हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यूं तो मलमूत्र हम सबके शरीर में है, धातुएं हैं, ये सब मल तो हमारे शरीर में है, ये शरीर तो मल से युक्त ही है। लेकिन उससे मंत्र कुछ मलिन नहीं होता है, हमारे बोलने से वो मलिन नहीं होता है। तो मंत्र की शुद्धता अपने आप में बनी रहती है, बल्कि मंत्र से हम शुद्ध होते हैं, हमारा मन शुद्ध होता है। तो वो सबके लिए लाभदायक है, किसी भी समय में अच्छा है। ठीक है जी। जी, ప్రభాకర్ గారు, మీరు हाँ। నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉంటే తర్వాత అడగండి, వేరే వాళ్ళ కోసం అవకాశం ఇద్దాం. జీ, ఇంకా వేరే వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు, అవకాశం బట్టి ఇంకో మన తర్వాత తీసుకుందాం మీ ప్రశ్నలు. జీ, ఇంకా వేరే వాళ్ళు. गुरुजी हाँ। नमस्ते। नमस्ते। ये आत्मदर्शन या मोक्ष प्राप्त करना एक बहुत लंबी प्रयाण है। ये जन्म में बहुत लंबा प्रयाण है, लॉन्ग जर्नी। ये जन्म में शुरू किया है मैंने जानने के लिए। ये अगले जन्म में इसका कंटिन्यूटी रहेगा? रहेगा। तो अभी जो हम जितना जानते हैं, समझते हैं और आचरण में लाते हैं, उसके संस्कार पड़ जाते हैं मन में, हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन में, चित्त में संस्कार पड़ते हैं। तो जब हम एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर भी हमारा साथ में जाता है और स्थूल शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर वही रहता है। तो उसमें जो संस्कार हैं वो जू के त्यों रहते हैं, और वो संस्कार हमारे को अगले जन्म में जब भी उचित समय आता है तो वो उभरते हैं और फिर हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो हम अपनी यात्रा आगे से प्रारंभ कर सकते हैं, वो यात्रा हम अपनी आगे से प्रारंभ कर देते हैं और पिछला वाला भी हमें उसमें उपयोगी होता है, हमारे लिए आगे की साधना सरल हो जाती है, हम आसानी से समझते हैं और हमारा मन उस तरफ जाता है, उन विषयों की तरफ हमारा मन जाता है। हमारा मन विवेक वैराग्य में जाएगा, एकांत में जाएगा, ध्यान करने के लिए लगने लगेगा। तो ऐसा हमारा झुकाव बचपन से बन जाता है और फिर हम बचपन से चलते हैं और हम फिर आगे प्रयत्न करेंगे तो और आगे बढ़ सकते हैं। जी, हो गया आपका? गुरुजी, ये विवेक के बारे में थोड़ा और समझा दीजिए।
देखिए विवेक का मतलब तो ज्ञान है, और जैसे सांख्य दर्शन है वो तो सम्यक रूप से ज्ञान या ख्याति ज्ञान की ही बात करता है, तो वो विवेक कहलाता है। कि विवेक का वैसे अर्थ होता है कि हम कुछ जानने के बाद में जब हम उसको सही और गलत को अलग अलग कर सकते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो हम अलग अलग कर लेते हैं, इस सामर्थ्य को विवेक कहते हैं। ये हमारे लिए हितकर है, ये अहितकर है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये जो सारा सारा ज्ञान होता है वो विवेक कहलाता है। मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, मैं बुद्धि हूं, आत्मा हूं, ये जो अलग अलग भेद हो जाता है कि मैं बुद्धि से भिन्न आत्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं, तो ये जो चीजें होती हैं ये विवेक कहलाती है। और संसार में कितना सुख है, परमात्मा में कितना सुख है, संसार के सुखों में उसमें अलग भेद कर लेना कि संसारिक सुख अलग है, परमात्मा का सुख अलग है, संसार में दुख है, परमात्मा में दुख नहीं है, ऐसे अच्छा बुरा, हितकारी अहितकारी, सुख कारक दुख कारक, ये जो हम भेद कर लेते हैं स्पष्टता से, तो उसे विवेक कहते हैं। तो ये विवेक होने पर ही मुक्ति हो पाती है। और जब तक विवेक नहीं होता है तब तक हम संसार और संसार के पदार्थों को अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य मान करके चल रहे होते हैं, उसमें सुख ले रहे होते हैं। तो इस कारण से अभी हमारी वास्तव में इच्छा ही नहीं हुई है मुक्ति की, इसलिए हमें मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन जब संसार को भोगते हुए, संसार के अनुभव लेते हुए हमारी समझ बन जाती है, विवेक हो जाता है, तो फिर संसार से हम अलग होने लगते हैं, विरक्त होते हैं। तो विवेक से वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है, हमारे को लगाव मोह ये सब चीजें हट जाती हैं, हमारे को पुत्र इष्णा, वित्त इष्णा, लोक इष्णा ये हमारी कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये विवेक से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, और हम फिर केवल ईश्वर और मुक्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं, संसार से विमुक्त हो जाते हैं। तो ये विवेक है, जिससे कि उसको हम मोटे शब्दों में, दूसरे शब्दों में ज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन में क्या ना, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, और बंधो विपर्य, बंधन विपर्य से यानी अज्ञान से या अविद्या से होता है। तो ज्ञान, विद्या, विवेक, ये तीनों चीजें हम लगभग एक अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, और इससे मुक्ति हो। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। मैं कुटुंबराव हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। जी स्वामी जी, जी मेरा प्रश्न है कि ये पहले आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी का फॉलो कर रहा था, बीच में और दूसरे गुरु का रमेश जैन करके उनका भी वो थोड़ा खाली हिंदी में ज्ञान का थोड़ा पढ़ाता है साहब रमेश जैन। अभी मैं ये अपना ये मेरे लोग से ये अभी योगा दर्शन और अभी संख्या दर्शन में सुन रहा हूँ, थोड़ा मेरे को इतना हिंदी ज्यादा नहीं आता है, फिर भी जो ये गुरु ये आचार्य बता रहे हैं मेरे को, हम लोग को तो बहुत अच्छा तरीके से बता रहे हैं। लेकिन ऐसा एक मैं इतना इधर उधर जा रहा हूँ क्या? नहीं तो ये कि ज्ञान खाली पढ़े से तो चलता है क्या? नहीं तो ध्यान भी करना है, वो थोड़ा मेरे को संशय है, थोड़ा आप उनके बारे में। हाँ, तो देखिए, आपको भिन्न भिन्न गुरुओं के पास भी जाते हैं तो वहां से जो अच्छी बातें होती है वो ले लेनी चाहिए, ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें सांख्य में एक सूत्र भी आता है, बहुशास्त्र गुरु उपासने की सारादानम षट पदवत। बहुत सारे गुरु और शास्त्रों की उपासना करने पर भी, उनके निकट जाने पर भी उसमें से भौरे के समान, मधुमक्खी के समान उसमें से सार सार को हमें ले लेना होता है। तो आपने जहां जहां से भी सीखा है, जो जितना अच्छा सीखा है वो ठीक है, और जो अब आप और सीख रहे हैं उसको भी पढ़ना है, पढ़ के अपने को समझ को ठीक रखना है, ऋषियों के अनुसार शुद्ध ज्ञान लेके, और उसके अनुसार फिर ध्यान आदि भी करना है, ध्यान भी करते रहना है। तो इस प्रक्रिया को आप करते रहिए, अच्छी बात है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई है? प्रणाम आचार्य जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। आत्मा मुक्ति सुख के बाद लौट करके आता है तो भगवान किस आधार पर जाति, भोग, आयु देता है?
यदि कर्म पूरा नष्ट होने पर भी कैसा जन्म देता है? तो ये एक अपवाद है। सामान्यतया तो जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और सृष्टि का प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है, वहां सब कर्म के अनुसार फल मिलते हैं। लेकिन चूंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कर्म सारे समाप्त हो जाते हैं, तो मुक्ति से पहले कर्म सारे समाप्त होते हैं, फिर उनको उनका भोग हमें नहीं मिलता है। तो चूंकि ये एक अपवाद है, तो यहाँ अब जो आपका प्रश्न है कि बिना कर्म के ये कैसे मिलते हैं, तो बिना कर्म के भी प्रारंभ में ये परमात्मा अपनी कृपा से हमें देता है। जैसे हम अपने बच्चे को किसी काम धंधे पे लगाते हैं, तो प्रारंभ में उसको हम कुछ देते हैं, भाई ये आपका रखिए, तो वो उससे काम करना प्रारंभ करता है। फिर जितना वो कमाता है, अधिक है या घाटे में जाता है, वो उसकी अपनी है कि, लेकिन उसको एक आधारभूत चीज दी जाती है। यदि परमात्मा आधारभूत चीज नहीं देगा तो हम कर्म कैसे करेंगे? और मुक्ति में पहुंचने तक सब आत्माएं समान योग्यता वाली हो जाती है। अब उनमें भेद नहीं रहता है। जब हम कर्म कर रहे होते हैं वहां तो भेद होते हैं, और उन भेद के अनुसार परमात्मा कर्मों का फल देता है, भिन्नता यथा योग्य देता है। लेकिन जब मुक्ति में आत्माएं जाती है, वो सब समान हो जाती है, एक समान योग्यता को प्राप्त कर लेती है। तो अब समान को जब जन्म देना होता है तो वहां फिर भेद नहीं किया जाता है, वहां तो उनको समान ही सुविधाएं दी जाती हैं। तो मुक्ति के बाद में जो जन्म मिलता है वो मनुष्य का जन्म मिलता है, और सामान्यतः उनको ठीक शरीर, बुद्धि, इंद्रियां आदि जो मूलभूत साधन है वो सब उनको मिल जाते हैं। सब आत्माओं को, सबको मिलते हैं। जो जो भी मुक्ति से लौट के आता है वो बिना कर्म के मिलते हैं। उसमें कोई दोष नहीं आता है कि परमात्मा बिना कर्म के देता है, तो सबको समान देता है। और कर्म के अनुसार देते हैं तो न्याय लगता है, बिना कर्म के देते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि वो अन्याय कर रहा है। लेकिन ये अन्याय नहीं है, सबके लिए समान व्यवस्था है। जितनी भी आत्माएं, सबके लिए यही व्यवस्था है, इसलिए इसमें किसी के साथ अन्याय या पक्षपात नहीं होता है, सबको समान रूप से होता है। तो परमात्मा ये अपनी कृपा से बिना कर्म के अनुसार भी हमें प्रारंभ में हमारे हित की दृष्टि से हमें आगे काम करने के लिए ये देता है, क्योंकि बिना साधनों के तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। आगे के लिए नए सिरे से जब हमें मुक्ति का प्रयास करना है तो वो बिना साधनों के हो नहीं सकता है, तो बिना कर्म के भी दिया जाता है। ये इसका अपवाद हम बन करके चले। हो गया आपका? धन्यवाद इसमें महाराज। तो प्रति प्रश्न तो पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो। हाँ आचार्य जी, और एक प्रश्न है मुझे। हाँ पूछिए। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को सुख और दुख का अनुभव कैसा होता है? नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर को तो वैसे होता नहीं है, आत्मा को ही होता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर जब होता है तब भी आत्मा को सुख और दुख नहीं होते। जब स्थूल शरीर में हम आते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ साथ स्थूल शरीर में होते हैं, तब हमें ये सुख सुविधाएं और होना न होने के कारण से सुख और दुख होते हैं। सूक्ष्म शरीर में तो कोई जीवन अभी चल ही नहीं रहा है, कोई जन्म नहीं दिया हुआ है, तो वहां कोई भी सुख दुख नहीं होता। वहां भोजन की आवश्यकता नहीं है, वहां पर और किसी की पानी की आवश्यकता नहीं है, वहां निद्रा की आवश्यकता नहीं है, वहां थकान नहीं होती है, तो न वहां कोई रोग होता है। इसलिए वहां कोई भी सुख दुख नहीं होता है सूक्ष्म शरीर जब भी होता है। और उस समय आत्मा जो है वो ज्ञान भी नहीं कर पाता है, मूर्छित जैसा रहता है। फिर जब परमात्मा अगला जन्म देता है तब वहां पर फिर वो जाता है। इसलिए वहां सुख दुख कुछ भी नहीं होता है। आचार्य जी बोलते हैं कि अब नर्क में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, नर्क में जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, तो ये कैसा मालूम हो जाएगा? हाँ मालूम तो ऐसे हमें नहीं पड़ता है, वो कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग है और नरक है। तो उसमें आप इसको ऐसा समझिए कि अच्छे कर्मों का फल सुख होगा और बुरे कर्मों का फल दुख होगा। दुख और दुखदायक परिस्थितियां होंगी। तो वो जहां पर भी है, जहां दुख है, दुखदायक परिस्थितियां हैं, वहां पर नरक है। और जहां सुखदायक स्थितियां हैं, सुख के साधन है, उन्नति के साधन है, वहां पर स्वर्ग है। तो इस पृथ्वी पर भी जहां हम ऐसी नारकीय स्थितियां देख सकते हैं, परिस्थितियां लोगों की रहती हैं और बहुत अच्छे तरह से भी रहते हैं, सब सुख सुविधाएं रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निर्भय होकर के रहते हैं। तो सुख विशेष का होना स्वर्ग है, और
दुख, विशेष दुखों का होना वो नरक है। तो अलग से कोई स्वर्ग और नरक वाली स्थिति हम नहीं स्वीकार करते, लेकिन हाँ, जैसे ये पृथ्वी है ऐसे और भी पृथ्वियां हो सकती हैं जहाँ प्राणी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। वहां यहाँ से कुछ अच्छी भी हो सकती है और यहाँ से बुरी भी हो सकती है, वो हो सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर भी कुछ अच्छा और कुछ बुरा स्थान होता है, ऐसे भिन्न भिन्न पृथ्वियां भी हो सकती हैं। बस उसी रूप में स्वर्ग और नरक को करते हैं। बाकी अलग से कोई स्वर्ग और नरक है जैसी बहुत अलग अलग लोग कल्पना करते हैं, उस तरह के स्वर्ग और नरक तो नहीं। जी धन्यवाद हो गया? आचार्य जी। हाँ। नमस्ते महोदय। नमस्ते। मृत्यु के बाद जन्म देने के लिए कितना समय लगेगा? उस समय आत्मा कहाँ अस्तित्व है उसका? हाँ, तो जितना भी समय लगता है तो वो परमात्मा के नियंत्रण में रहता है। तो परमात्मा को ही वहां पर यमराज कहते हैं, वो मरने के बाद में हमारा नियंत्रण रखता है। और उसमें परमात्मा में ही रहता, कहीं भी रह सकता है वो। उसको रहने के लिए कोई जगह की आवश्यकता नहीं है कि जैसे हमें रहने के लिए मकान चाहिए, आने जाने के लिए वाहन चाहिए, हम धरती पे पैर रख करके चलते हैं, भूमि चाहिए, ऐसे कुछ उनको आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे आप मोटे तौर पे समझें कि जैसे सूक्ष्म कण होते हैं या वायु के कण हैं, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं, बस रिक्त स्थान में कहीं भी चले जाते हैं। ऐसे आत्मा भी कहीं पर भी रह सकता है, वो यहाँ भी भूमि पे भी रह सकता है, भूमि के अंदर भी रह सकता है, वहां भी कोई उसको दिक्कत नहीं है, आकाश में जो रह सकता है। तो जहां भी परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार वो जहां भी उसको ले जाता है वहां आत्मा रह सकता है। तो इसलिए कोई स्थान विशेष नहीं है कि वहीं रहेंगे, सब इकट्ठे वहां रहेंगे, तो कहीं भी रहेंगे। और फिर जहां जन्म लेना होगा वहां परमात्मा पहुंचा देता है, उस शरीर में, उस गर्भ में उस आत्मा को पहुंचा देता है। तो वहां फिर उसका अगला जीवन प्रारंभ हो जाता है। धन्यवाद महोदय। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। पितृलोक में जो रहते हैं मृत्यु के बाद, उनके लिए श्राद्ध सभी करना चाहिए ऐसे बोलते हैं। प्रति वर्ष ऐसा करना जरूरी है। जी। ऐसा करने से पितृलोक में जो रहते हैं उनका आशीर्वाद मिल जाएगा ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा करने से हमको लाभ मिलेगा? कितना समय ऐसा करना पड़ेगा? देखिए, जो आपने बातें रखी हैं कि मृत्यु के बाद में उनको पितृ या पितर कहते हैं, फिर वो जहाँ रहते हैं वो पितृलोक है, तो ऐसा नहीं। अभी जो हमारे साथ में हमारे माता पिता हैं, पितृलोक हैं, वो ही हमारे पितर हैं। और उनकी सेवा शुश्रूषा जो भी हम कर सकते हैं जितने अच्छे से, वो हमें करनी चाहिए। और उनका आशीर्वाद जो हमें मिलता है बस वो ही है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनकी मृत्यु के बाद में वो पितृलोक में जाते हैं और फिर वहां रहते हैं और हम यहाँ भोजन कराते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो उनको मिलता है, ऐसा नहीं है। मृत्यु के बाद में हर आत्मा परमात्मा के नियंत्रण में रहता है और परमात्मा उनको जहां जन्म देना है कर्मानुसार वहां पर जन्म देता है। और हम यहाँ पर कुछ भी भेंट पूजा करते हैं या भोजन देते हैं, वो उन तक तो पहुंचता नहीं है। वो यहाँ जिनको हम देते हैं, मान लो पक्षियों को देते हैं तो वो खा लेते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं तो वो खा लेते हैं, अन्य लोग खाते हैं। बाकी हमारे उन पितरों तक वो नहीं पहुंचता, उनको आवश्यकता ही नहीं है। उनके भोजन की व्यवस्था आगे के जन्म की वो परमात्मा करता है। जैसे हमने जन्म लिया यहाँ पर तो हमारे भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है और हम प्रयत्न करके कर लेते हैं, लेकिन पीछे के जन्मों का किसी का दिया हुआ हमारे पास नहीं आता। तो ऐसे ही हम जो करते हैं तो वहां उन तक जाता नहीं है, और जो हमने उनके जीवित रहते सेवा की है बस उसी से हमें जो पुण्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो हमारे लिए लाभदायक है। मृत्यु के बाद में ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और उससे कोई हमारे को लाभ नहीं होने वाला है, पितरों की तरफ से कोई लाभ नहीं होने वाला है। और हम नहीं करेंगे तो पितर भटकेंगे, भूखे रहेंगे, ऐसा भी नहीं। उनको भी भोजन अपनी जगह पे ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है। ठीक है, धन्यवाद महोदय।
आचार्य, ये परमात्मा को जानने के लिए विवेक से ही होता है मालूम है, फिर से लेकिन बोलिए। इसका कुछ साधना प्रक्रिया कुछ है कि हम कैसे होना चाहिए, कैसा आलोचन कर सकते हैं, इसका कुछ साधना प्रक्रिया है क्या? हाँ, बिल्कुल। परमात्मा को जानने के लिए पूरी साधना प्रक्रिया है। वो साधना प्रक्रिया हमें सांख्य दर्शन में भी मिलती है कुछ मात्रा में, और योग दर्शन में पूरी व्यवस्थित रूप से हमें प्राप्त होती है। तो पूरी साधना प्रक्रिया है, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, स्वास्थ्य ठीक रहे और हम मन में शांत रहे, यम नियम का पालन हो, परोपकार हो, स्वाध्याय हो, वो पूरी साधना की प्रक्रिया है। धीरे धीरे हम उन्नति करते जाते हैं और अपने मन को पवित्र करते जाते हैं। तो मन के अंदर जो अविद्या है वो कम होती जाएगी, राग द्वेष आदि कम होते जाएंगे, क्लेश कम होते चले जाएंगे, और उससे फिर आगे आगे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं तो फिर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ये पूरी साधना की प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। तो उसमें हम हमारी जो स्थिति है उसके अनुसार हम कुछ कुछ चीजों को अपनी साधना में लेते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी साधना करते जाते हैं और फिर हमारी योग्यता बढ़ती जाती है, फिर हम आगे की साधना करते चले जाते हैं और फिर ऐसे ईश्वर की प्राप्ति अंत में जाकर के होती है। धन्यवाद महोदय। जी, డాక్టర్ విశాలాక్షి గారు ఉన్నారండి? जी, ఇంకా ఎవరన్నా సందేహాలు ఉంటే అడగవచ్చు మీరు ఇంకా। मैं एक प्रश्न पूछूं? जी, प्रभाकर पूछे। ओम। नमस्ते स्वामी जी, प्रणव मुनि, हैदराबाद। परमात्मा की उपासना करना है तो निराकार से करना, साकार से करना, ये दो भी अपने सामने है, ये कौन सा अच्छा है, उसका जवाब सुनना चाहता हूँ। जी जी जी। तो देखिए, योग और सांख्य का जो भी मार्ग है ये सत्य का मार्ग है, और जैसी जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही मानना होता है। व्यवहार में भी हम जो चीज जैसी है उसको वैसा मान करके ही उसकी उपासना होती है। तो परमात्मा चूंकि निराकार है, उसमें रूप गुण नहीं है, इसलिए परमात्मा को निराकार मान के उसकी उपासना करना ही तत्व या तो सत्य है। जो चीज जैसी नहीं है वैसा मान के करने से हमें लाभ नहीं होगा, और जितना ठीक मानते हैं उतना होगा, जितना गलत है उतनी हानि होगी। तो इसलिए परमात्मा साकार है ही नहीं, तो इसलिए हमें उसको साकार रूप में उपासना नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम परमात्मा को जब साकार मानेंगे तो किसी भी साकार वस्तु को भगवान मान सकते हैं, ईश्वर मान सकते हैं, परमात्मा मान लेते हैं। तो किसी मनुष्य को भी हम ईश्वर मान लेते हैं, किसी जड़ वस्तु को भी ईश्वर मान लेते हैं। लेकिन अगर हमें ये स्पष्ट है कि परमात्मा निराकार है, तो जितनी भी साकार वस्तुएं हैं वो परमात्मा नहीं हो सकती, ईश्वर नहीं हो सकती, ये हमारे को निश्चित रहता है। तो निराकार की ही उपासना करते हैं, निराकार का ही ध्यान करते हैं, वो ही ठीक है। ओके। ओम स्वामी जी, ये उपासना में गायत्री मंत्र जप करना है, कैसा आगे बढ़ना है ईश्वर प्राप्ति के लिए? थोड़े लोग बोलते हैं कोई मंत्र जप नहीं करना, खाली बैठना जी। वो अंतर क्या है इसमें? हाँ, देखो, दोनों प्रक्रिया की जाती है, कोई एक प्रक्रिया नहीं, दोनों ही प्रक्रिया होती है। कभी हम खाली भी बैठते हैं, चुप मौन बैठते हैं, शांत बैठते हैं, और कभी हम मंत्र भी बोलते हैं, ओम का जप करते हैं, या तो अन्य मंत्र को भी लेते हैं। तो मंत्रों में क्या होता है, विचार होते हैं, मंत्रणा होती है, विचार होते हैं, और उन विचार मंत्र को बोलते हुए उसके अर्थ का चिंतन करते हैं, और अर्थ का चिंतन करते हैं तो उसका हमारे पे मन पे संस्कार पड़ता है, चित्त पे संस्कार पड़ता है, अच्छे संस्कार बनते हैं। तो अच्छे संस्कार बनाने के लिए मंत्र का प्रयोग किया जाता है, मंत्र के अर्थ का प्रयोग किया जाता है। अगर हम शांत बैठे हैं तो मंत्र से जो अच्छे संस्कार आने होते हैं वो नहीं आएंगे, वहां फिर हमारे को बस केवल हम शांत बैठे बस इतना ही होगा। तो चूंकि हमारे अंदर बुरे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार को हटाने के लिए अच्छे संस्कार चाहिए, अविद्या को हटाने के लिए विद्या का ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए, वो मंत्रों के माध्यम से होता है। इसलिए अर्थ सहित मंत्र का जप करते हैं, वो हमें लाभदायक।
धन्यवाद। जी आचार्य जी, एक प्रश्न आया है, तेलुगु में हाँ। लिख करके भेजा है, मैसेज करके। तो आत्मा के लक्षण इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आत्मनो लिंगानी ऐसे बताया है, लेकिन स्वाभाविक इच्छा द्वेष प्रयत्न है तो वो कैसे छूटेगा? आत्मा का इच्छा द्वेष प्रयत्न, तो द्वेष भी है यहाँ पे, तो द्वेष कैसे छूटेगा? स्वाभाविक लक्षण जो है, जो छूटने की जो बात करते हैं, शास्त्र बताते हैं, ये कैसे छूटेगा? हाँ, ये देखिए प्रश्न है। राग और द्वेष भी वहां पर, या इच्छा और द्वेष भी जो आत्मा के स्वाभाविक गुण है, तो वो स्वाभाविक गुण कभी भी नहीं छूटता, ये बात ठीक है। तो जो द्वेष छोड़ने की बात कही जाती है धर्म में, अध्यात्म में, वो अविद्या युक्त द्वेष को छोड़ने की बात कही जाती है, विद्या युक्त द्वेष की नहीं होती है। द्वेष का मतलब होता है अप्रीति, प्रीति का ना होना उसमें। अब मान लीजिए हमें चोरी में प्रीति नहीं है, तो इसका मतलब हुआ चोरी से हमें द्वेष है। ये आत्मा का स्वभाव है, गलत वस्तु, हानिकारक वस्तु से द्वेष होता है, हमें रखना ही होता है। अगर हम सब चीजों से प्रीति ही रखेंगे और द्वेष किसी से भी नहीं रखेंगे, तो गलत चीजें भी हमारे अंदर रहेंगी। तो हमें अपनी अविद्या से द्वेष है, क्रोध से, काम से, ईर्ष्या से, भय से, ये सब चीजें हटनी चाहिए, रोग हटना चाहिए। तो ये द्वेष होता है, द्वेष होता है, अप्रीति होती है। तो और संसार में जो दुख है उससे भी हमें अप्रीति द्वेष रखना होता है, वो हटे, नहीं तो हम उसको हटाएंगे ही नहीं। तो जो संसार में द्वेष हटाने की बात धर्म और अध्यात्म में कही जाती है, वो अविद्या वाले द्वेष और राग को हटाने की बात कही जाती है। लेकिन जो विद्या युक्त द्वेष है वो रहेगा ही और होना चाहिए, तभी मुक्ति होगी। विद्या युक्त प्रीति होनी चाहिए, ईश्वर और मुक्ति में प्रीति होनी चाहिए, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। तो इन दोनों को, राग और द्वेष को, प्रीति अप्रीति को, विद्या और अविद्या, ये दो भागों में बांट सकते हैं। तो अविद्या वाली प्रीति, अविद्या वाली अप्रीति या अविद्या वाला द्वेष, वो हटना चाहिए, उसी के हटाने की बात है। बाकी मुक्ति में भी जो आत्मा का स्वाभाविक गुण द्वेष है वो रहेगा, लेकिन उससे मुक्ति में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो तो स्वाभाविक है और शुद्ध है। ठीक है, स्पष्ट हो गया प्रश्न का उत्तर? जी आचार्य जी। ठीक है, और एक प्रश्न आचार्य। हाँ बोलो। और एक प्रश्न आया आचार्य जी, तो राग तो कभी छूटता नहीं है, मैंने कामना किसी ना कोई कामना रहती ही है, तो मुक्ति का भी कामना भी एक कामना ही है, तो वो कामना कैसे छूटेगी? तो वो भी तो कामना है, तो उसको भी राग होगा। राग है तो कामना है, तभी तो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे, तो वो भी एक दोष युक्त ही है, कैसे मुक्ति होगी? क्योंकि रागोपहतम ध्यान में ऐसे बताया है, तो कैसे ध्यान लगेगा? वो इस प्रकार प्रश्न किया आचार्य। तो देखिए, मुक्ति की भी कामना तो रहेगी, कामना यानी इच्छा, तो इच्छा भी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तो बिल्कुल इच्छा से रहित तो कोई आत्मा होगी ही नहीं, इच्छा तो रहेगी। हमें केवल ये देखना होता है कि गलत इच्छाएं ना हो और अच्छी इच्छाएं हों। जो हितकारी इच्छाएं हैं वो रखनी चाहिए, अहितकारी इच्छाएं छोड़नी चाहिए। तो मुक्ति की इच्छा, वो भी मुक्ति की कामना है और वो हितकारी है, वो विद्या से युक्त है, इसलिए उसको छोड़ा नहीं जाता है, उसको तो रखा जाता है, उससे कोई बाधा नहीं है। और रागोपहतिर ध्यानम, जो वो राग है, वो अविद्या युक्त राग को छोड़ने की बात होती है। ये जो विद्या युक्त राग है, ईश्वर से प्रीति है, वो तो हमारे ध्यान को अच्छा बनाने में कारण बनता है। तो इस तो कामना मात्र, कोई भी कामना हो तो मुक्ति में बाधक है, ऐसा नहीं कि मुक्ति की कामना है, मुक्ति की कामना है तो फिर कामना हो गई तो अब मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसा कोई सोचे, ये ठीक नहीं है। मुक्ति की कामना तो रखनी ही होती है, ईश्वर की कामना तो रखनी ही होती है, और वो कुछ ना कुछ कामना रहेगी ही। और यदि आप कल्पना करो कि कोई कह रहा है जी मेरे को मुक्ति की भी कामना नहीं करनी है, क्योंकि मुक्ति की कामना करी तो भी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए मुक्ति की भी कामना नहीं करनी है, तो उनसे पूछेंगे कि आप मुक्ति की कामना क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोले मुक्ति की कामना भी मुक्ति के लिए ही तो नहीं कर रहे हो। अगर मुक्ति को चाहेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन मुक्ति को पाना तो है, मुक्ति को पाना है लेकिन मुक्ति की कामना नहीं रखेंगे तो मुक्ति मिलेगी, ऐसा जो सोचते हैं तो मुक्ति के लिए ही तो मुक्ति को ना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, तो वो भी कामना तो हो ही जाएगी।
इसलिए कामना से रहित तो कोई होता ही नहीं है, कामना तो होती ही है। इसलिए कामना अपने आप में बुरी नहीं है, इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, वो ठीक है, तभी तो हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो लेकिन अविद्या युक्त नहीं होनी चाहिए, दोष युक्त नहीं होनी चाहिए, केवल इतना ही उसमें विशेष ध्यान रखने की बात है। जी आचार्य जी। नमस्ते गुरुजी। हाँ। मुक्ति का सरल उपाय क्या है? किसका? मुक्ति का सरल उपाय क्या है? सरल उपाय है, आप पहले मेरे को कठिन उपाय बता देंगे, कौन सा कठिन उपाय है जो आपको पता लगा? मुझे नहीं पता। क्या कठिन उपाय तो आपको पता है? మీకు ఏది కష్టంగా అనిపిస్తుంది? మీకు ముక్తిని పొందడంలో ఏది కష్టంగా అనిపిస్తుంది అది చెప్పండి. మీకు ఎందుకు కష్టంగా ముక్తి కోసం ప్రయత్నం చేయలేకపోతున్నారు, ఆ కష్టమైన విషయం చెప్పండి. वो कष्ट, कौन सा कष्ट वाला उपाय है वो बताएंगे आप? योग करना, ध्यान में रहना। हाँ, तो कर्म करना और ध्यान में जाना, उसमें कष्ट होता है, उसमें कष्ट लगता है। देखिए, पुरुषार्थ तो हमें करना ही होता है, पुरुषार्थ को कष्ट नहीं कहते हैं। पुरुषार्थ को कष्ट कहेंगे, फिर हम कष्ट रहित सरल उपाय चाहते हैं, मतलब कम पुरुषार्थ से हो, तो ये तो देखो आलसियों की बात हो जाती है। और हमारे ऋषियों ने जो रास्ता बताया है, वेद में जो रास्ता बताया है, वो सबसे सरल ही है। हमें कठिन लगता है लेकिन वो सबसे सरल ही है। हमारे अंदर चूंकि बहुत बुरे संस्कार हैं, अविद्या है, इसके उसको हटाने में हमें बहुत समय लग जाता है, इसलिए वो हमें कठिन प्रतीत होता है। लेकिन जब हम उसके अनुकूल चलने लग जाते हैं तो वो हमें को कठिन ही नहीं लगता है, वो कठिन नहीं है। और सबसे सरल उपाय यही है, इससे एक सरल कोई उपाय नहीं है। जो सरल कहेगा, हमारी सबकी इच्छा होती है कि कोई सरल उपाय हो, सरल उपाय हो, कितना भी सरल कर दो तो भी कहेंगे कि कोई और सरल उपाय हो। तो वो जो सरल उपाय होते हैं वो मुक्ति को प्राप्त ही नहीं करवाते, उनसे मुक्ति की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो इसलिए जो अष्टांग योग का मार्ग है, वेद का मार्ग है, हमें यम नियम का पालन भी करना है, हमें ध्यान साधना भी करनी है, हमें धर्म का पालन भी करना है। इन सबको करने पर ही मुक्ति होती है, और कोई उपाय ही नहीं है। और आप ये सरल उपाय कहना चाहें तो ईश्वर की भक्ति में अगर हम पूरे डूब जाते हैं, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और विवेक पैदा हो जाता है, तो फिर सब कुछ सरल ही सरल है, फिर कुछ भी कठिन नहीं है। अंदर से अपने को ज्ञानवान बना लेना, विवेक बना लेना, ये सबसे सरल उपाय है। तो ये सांख्य दर्शन उसी उपाय को बताता है कि हम विवेकी बन करके, और अंदर से जब हम समझ जाते हैं, अंदर से हम ठीक हो जाते हैं, अविद्या हट जाती है, तो मुक्ति हो जाएगी। ये सबसे सरल उपाय है। और यही जो भी है, इसको तो कठिन भी कह सकते हैं, लेकिन छोटे रास्तों के चक्कर में आप ना पड़े। छोटे रास्तों के चक्कर में फिर आप कहीं भी नहीं जा सकते, वहीं फंस के रहेंगे। ठीक है, ठीक है जी, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. जी, ఇంకెవరైనా प्रश्न ఉంటే అడగవచ్చు. नमस्ते, नमस्ते महोदय, मैं नमस्ते। तिरुमलैया हैदराबाद से बात कर रहे हैं। हम योग दर्शन सब अब सुन रहे हैं, अच्छा क्या वास्ते प्रयत्न कर रहे हैं, या मुक्ति या अपना लेवल ऑफ प्रैक्टिस कहाँ तक है बोल के कैसा मालूम कर सकते कुछ? इज देयर एनी वेज टू नो दी हमारा लेवल कहाँ तक है, वो कितना दूर है, हम कहाँ तक है बोल के कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं अपन? हाँ, एस्टिमेट कर सकते हैं। उसमें योग दर्शन में सारी बातें लिखी हैं कि जो यम नियम का पालन है, हमें स्वयं पता लगता है ना कि मैं अहिंसा का पालन करने लगा हूँ या नहीं लगा हूँ, मैं सत्य का पालन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। और जब इनका पालन करते हैं तो हमारी विशेष योग्यता बन जाती है। संतोष का पालन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, संतोष होगा तो अंदर शांति होगी और एकाग्रता होगी, तो हमारा मन एक जगह लगेगा। तो इन सब से हमें प्रतिदिन पता लगता रहता है कि हमारी स्थिति क्या चल रही है। अगर हमारे अंदर अविद्या दिखाई दे रही है, संसार में सुख दिखाई दे रहा है, ईश्वर के प्रति प्रीति नहीं हो रही है, तो मतलब हमारे में अविद्या और अभी प्रगति नहीं हो रही, ये हम मानते हैं। तो ये तो हमारे को पता लगता ही रहता है कि हम ठीक चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं।
और जिस समय हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा तो हमारे समस्त दुख भी चले जाएंगे, हमारे को शांति हो जाएगी बहुत। उससे पहले से भी बहुत शांति हमारे को आने लग जाती है। उससे हमें पता लगता है कि हमारी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही। स्वामी जी, लेवल कितना कौन सा लेवल पे है, कुछ परसेंटेज वो मालूम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? वो हमें स्वयं ही देखना पड़ता है ना कि मैं आपको कहूँ कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं, आपको कैसे पता लगेगा? आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं, आपको लक्षणों से ही तो पता लगेगा ना कि मेरे में कोई रोग है, दुख है, नहीं है। आप प्रतिशत में बता सकते हैं आप कितने प्रतिशत स्वस्थ हैं, कितने प्रतिशत अस्वस्थ हैं? आप बता नहीं, सकते हैं? हम तो जहाँ तक हम यह है, वी आर ऑल अपन जहाँ तक रह सकते हैं, अब वो संतोष में, सुख में कुछ। अच्छा, ये बताओ कि डॉक्टर बता सकता है कि हम कितने प्रतिशत स्वस्थ हैं और कितने प्रतिशत अस्वस्थ हैं? डॉक्टर लिखता है क्या कि इतने प्रतिशत स्वस्थ हैं? हम तो स्वस्थ है, हेल्थ हम के तो वास्ते स्वस्थ हैं। स्वस्थ है, मगर ज्ञान के वास्ते कैसा और कितना दूर जाने का है बोल के कुछ अपन हम एस्टिमेट कर सकते हैं क्या बोल के, हम वेयर वी आर रहने दे। नहीं, एस्टिमेट समय को एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपको जब आप पहुंच जाओगे तभी पता लगेगा कि आप मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा, अभी पहुंच गया हूँ, हाँ। अभी कैसे एस्टिमेट हाँ। करेंगे? आप मान लीजिए हैदराबाद से बेंगलोर जा रहे हैं, तो बैठे हैं आप हाँ। गाड़ी के अंदर। अब बार बार एस्टिमेट करेंगे कि कितने किलोमीटर रह गया, कितना रह गया? हम चलते हैं, बस चलते हैं, हमें पता है ये दिशा है और हम पहुंच जाते हैं। 1 किलोमीटर तो मालूम, रोड के ऊपर मालूम तो हो जाता कहाँ तक है, कितना दूर है बोल के। तो ऐसे ही योग में भी अष्टांग योग है ना, तो हमें पता लगता है कि अहिंसा की सिद्धि हो गई है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, वहां एक परीक्षा दी गई है। तो वहां पर सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम इत्यादि वहां वो लिखे हुए हैं सूत्र कि ऐसा होने पे ऐसा होगा, ऐसा होने पे ऐसा होगा। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक हम समझे कि अभी काम चल रहा है, अभी पूरे नहीं पहुंचे। और जिनके पास आप रहते हैं, किसी साधक के पास में, किसी साधु संत के पास में, वो आपके जीवन को देख के बता सकते हैं कि आपको कितना अभी चलना बाकी है या आप अभी कितने। वो आपका जीवन देखने से पता लगेगा कि आप कितने कर पाए हैं अभी तक। ठीक है। नमस्ते आचार्य जी, मैं नमस्ते रत्नाकर आर के गुंटूर से योग बोल रहा हूँ। हाँ आचार्य जी, ये योग दर्शन में विभूति पाठ में कुछ प्रैक्टिसेस या संयम तो एक आलम्बना, जैसे कि सूर्य में संयमात भुवन ज्ञानम, कंटकूपे संयमात क्षुत पिपासा। किंतु ये यहाँ पे 2-3 संयम है। एक मिनट आचार्य, बलेशु हस्ती बलादनी संयमात, वहां पे हस्ती पे हम संयम कर सकते हैं, लेकिन हस्त का बल पे कैसे कर सकते हैं? वैसे ही परिणामत्रय संयमात अतीतानागत ज्ञानम, ये परिणामत्रयम पे कैसे कर सकते हैं? ये तो सूत्र दिया गया है, लेकिन टेक्निक तो वहां पे नहीं, या पद्धति को नहीं दिया गया। ये कैसे कर सकते हैं आचार्य संयम? हाँ, नहीं देखिए, पद्धति आप उन्होंने कहा कि इनमें संयम करना चाहिए। हाँ। तो संयम का मतलब क्या होता है? धारणा, ध्यान, समाधि, त्रयम एकत्र संयम। हाँ। ठीक है। तो संयम का मतलब धारणा, ध्यान, समाधि। और धारणा, ध्यान, समाधि कैसे होते हैं उसका सब तीनों की परिभाषा और वो प्रक्रिया दी गई है। हाँ। तो उसी प्रक्रिया से अब धारणा, ध्यान और समाधि, तो मान लीजिए हम धारणा करते हैं हस्ती के बल में, तो हस्ती तो आएगा ही वहां पर, हस्ती का निषेध नहीं है। तो लेकिन केवल हस्ती पे हम केंद्रित रहेंगे, उसके बल पे केंद्रित रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। हाथी और हाथी का बल, बल मतलब गुण है तो गुणी तो वहां रहेगा ही। तो जब हस्ती बल का कथन है तो हाथी में तो रहेगा ही, लेकिन केवल हाथी में रखेंगे, बल में नहीं रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए हाथी के बल में धारणा करेंगे, ध्यान करेंगे
और उसमें समाधि लगेगी, उससे जो बल प्राप्त होगी तो वो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उसके अनुसार हम कुछ कर्म भी करेंगे। और कैसे कैसे वो बल प्राप्त करता है, तो ऐसे ही बाकी सब में भी है। तो अतीत अनागत ज्ञान जो होता है, तो वो सब भी चीजें वहां जिन जिन चीजों के अंदर सूर्य आदि में या कंठकूप में, वहां पर धारणा ध्यान समाधि की जाती है। हम धारणा और ध्यान करते हैं, समाधि फिर वहां पर लगती है। तो पहले तो हमारी समाधि की स्थिति पहुंचे, तब ये संयम की बात आती है। अभी तो हम धारणा और ध्यान ही करते हैं, और हमारा धारणा और ध्यान बहुत थोड़े स्तर का होता है, और अभी उसमें और अच्छा हमें करना है। और वो करने के बाद जब समाधि लगेगी तब अपने आप ही हो जाएगी। हाँ, जैसे और एक क्वेश्चन आ चाहिए, ये परिणाम त्रय है ना, परिणाम त्रय माने भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल में क्या क्या परिणाम हो रहे हैं। तो ये तो जैसे कि मैं बालक में बालकावस्था में ऐसा था, वर्तमान में ऐसा था और ऐसा हूँ, और भविष्य काल में ऐसा, वो है परिणाम त्रय माने, या और एक तरीका या नहीं, वो भी है। कोई वस्तु पहले का है, वो तो सारी प्रक्रिया वहां दी हुई है कि अतीत हमारी जो 3 अवस्थाएं होती है, उन 3 अवस्थाओं में कि अभी वो गुण उस वस्तु में गुण अभिव्यक्त नहीं हुए। आप बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था का कह रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं उसमें। लेकिन कोई चीज अभी जमी नहीं है, उसके गुण उसमें प्रसुप्त है, फिर प्रकट हो जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। तो किसी भी वस्तु के गुण धर्मों का उभरना, यानी प्रकट होना और अप्रकट होना, ये जो सारी चीजें प्रक्रिया है, इसको जानने से उनसे संबंधित हमें तीनों कालों का ज्ञान होता है कि भविष्य में ये कैसा होने वाला है। तो हमें भविष्य के बारे में ज्ञान हो जाता है। फाइन फाइन, मुझे नहीं मालूम हुआ कि ये सभी दिखाई देने वाला नहीं, ग्रॉस वस्तु नहीं है। हाँ, उस पे कंसंट्रेशन कैसे करते हैं या एकाग्र कैसे करते हैं, यही मेरा क्वेश्चन। हाँ, एकाग्र तो हर चीज में हम करते ही है ना। आपको किसी भी चीज में जानना है तो एकाग्र होकर के हम जानते हैं, उसको देखते हैं, छूते हैं, करते हैं, और फिर उससे फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, फाइन, अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है लोकेश जी, हो गया? जी आचार्य जी, जी अंतिम प्रश्न उनके ఒక प्रश्न। हाँ, नहीं तो नमस्ते करता हूँ सबको। जी आचार्य जी, ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्नों का समाधान मिला है, काफी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रश्न किया, हमसे भी हमको भी प्रेरणा मिली है इन लोगों को कैसे कैसे उत्तर दे सकता हूँ मैं, और काफी अच्छा रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप कथन मात्र से हमको पर अनुग्रह किया, हम सबको प्रेरित किया, तो धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी गारू। धन्यवाद आचार्य। नमस्ते महोदया। नमस्ते धन्यवाद महोदया। धन्यवाद सबको नमस्ते। जी, రేపు యథావిధిగా మనకు 8 గంటలకు క్లాస్ అలా కంటిన్యూ నడుస్తుందండి, కాబట్టి రేపంతా మీరు యథావిధిగా అదే టైంకి వచ్చేసేయండి। అస్తు। तो धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। नमस्ते महोदय। धन्यवाद नमस्ते महोदय। नमस्ते मंत्रपाठ महोदय। धन्यवाद महोदय। మనం ఈ కార్యక్రమ ఈ క్లాస్ ని ముగిద్దామండి। అస్తు, మంత్రపాఠః। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। ओम नमस्ते महोदय। जी नमस्ते महोदय।